Welcome, ladies and gentlemen, to Dinner Table Conversations. And today's topic is depression. Depression is a common mental disorder affecting more than 264 million people worldwide. It is characterized by persistent sadness and a lack of interest in previously rewarding or enjoyable activities. It can also disturb sleep and appetite. Tiredness and poor concentration are common. Depression is a leading cause of disability around the world and contributes greatly to the global burden of diseases. The effect of depression can be long lasting or recurrent and can dramatically affect a person's ability to function and live a rewarding life. But that was just the formal definition of depression. You must be wondering, why is it being covered in yet another podcast? Well, what we are going to talk about is not depression, but depression in teenagers. So, without wasting much time, let's start today's podcast. Welcome, panel members. So, before we actually start with the podcast, how about we introduce you guys to our audience? Also, because we are talking on kind of a sensitive topic, I think it would be also a good addition to tell the audience why exactly they should be listening to us. I would like to go first. So you can believe in what I'm saying because I am an ex-teen, so I can relate to teen stuff. Okay. That is all I have to say. Okay. Apti? Yeah. So strictly speaking, I have not had much experience dealing with people who have gone through depression or anxiety or angst, but having studied from an engineering college, I think we have seen people who are close to it, or in some way we have all um, witnessed Depressed. it in some degree or the other. So yeah. And also I'm also an ex-teen, so yeah. All right. Okay. How about you, Badsha? uh, this is the Badsha. But then it's alright. Depression. I haven't suffered depression really. Means I've never been depressed. I've been sad, yes, but not depressed. But then yes, like it has been some time now that I've had existential thoughts really, and think in that direction. Constantly, right? Okay. But then I think that has fair overlap. It has a similar flavor to some extent with depression, in terms of say anxiety, in terms of you know uh, just blacking out in situations and sort of questioning everything, right? So I think it has the same flavor somewhat. Yeah, but then never been depressed. Been around people, of course, who've had mental conditions and stuff, but yeah, that is the extent really. Okay. Okay. Cool. How about you, King? Yeah, so I guess, of course, in college, people have claimed or they have said that they're depressed at some point. But when you listen to the situation of what they're going through, you sometimes think that they're just down about something. Mm-hmm. But then again, none of us know what depression actually is, how it lingers around in your mind. Mm-hmm. So, of course, this knowledge would help in that also to determine whether I am depressed or not, someone else is depressed, to help someone to get through it. Okay, makes sense. I'm a medical student, and also the most qualifying thing about me is that I have crossed the teenage years. So I think I have fairly seen कि हम जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका सबसे raging episodes मेरे life में आ चुका है. I think I am qualified enough to talk a bit about it through my life experiences. Will that count, Humble? Yeah, perfectly. Anubis, over to you. Yeah, so I think I am qualified to be in this discussion and talk about depression because I have mostly the ex-teen argument is very nice, but I have been through phases of ups and downs in my life, and experiencing those have shown me that having knowledge and having people who empathize with it are very few in between. So
talking about it on an open platform would help those people who are suffering. So I think that my suffering could help those who are suffering now. All right. I mean, are you saying like you have been depressed at some point of time in your life? Is it? I like to call it sadness, but maybe it was depression, maybe it was sadness, but I guess we might never know. Or maybe it Hmm. was sadness that you got through, and if you hadn't, you would it might have led to or increased into. Maybe it might have deteriorated into depression, but I guess it's on the up right now, and I'm feeling fine right now. So I guess When So when does deterioration begin? If I may ask. let me answer that. um I'll go with it. So so in my opinion, I think जब लोगों के साथ कुछ already बुरा चल रहा है and the situation is already in such a way कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते हो, आप कुछ भी कर लो, basically things are out of your control, तो वहाँ पे सिचुएशन डाउनहिल जाना शुरू होती है. अब आप कैसे कोप करते हो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, आई थिंक दैट डिसाइड्स कि क्या आप उससे बाहर आओगे या चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी. So, agreeing with but Humble. this Go on, River. argument, this argument uh, takes into account only the situations. So, are you saying that it is only the situations that take part in you going into depression? In my opinion, and from what I've seen, people usually don't have that kind of temperament कि वो हमेशा sad होते हैं या in general वो काफ़ी वैसा लो फील करते रहते हैं. यूजुअली सिचुएशन ख़राब होती है और उसके बाद वो चीज़ किक इन होते हुए मैंने लोगों में देखी है. अब ऑफ कोर्स अभी के जनरेशन में या अभी के टाइम में हम लोग देखते हैं कि लोगों के पास सब कुछ है एंड इवन देन दे सफ़र सम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. बट मेरा पॉइंट ये रहेगा कि इवन दो दे सफ़र डिप्रेशन, बट उसके पीछे भी कोई ना कोई लाइक एक सिचुएशन होती है जिसकी वजह से वो चीज़ उनके लाइफ में किक इन करती है, इवन दो दे हैव एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल, उनके सारे फ्रेंड्स जो हैं दे आर जस्ट देयर फॉर व्हाट दे हैव, दे आर नॉट देयर एक्चुअल फ्रेंड्स. तो उन्हें इवेंचुअली रियलाइज़ होता है कि देयर इज़ नो वन हु एक्चुअली केयर्स फॉर देम, या ऐसी टाइप की फीलिंग सेट इन करती है. तो मतलब अगर टेक्निकली बोलूँ तो मुझे लगता है कि सिचुएशन ही है जो किसी को उस पर्टिकुलर रास्ते पे लेके जाता है. Acha, so Yeah, I I have a think. take on this. I have a take Yeah. on this. Okay. In my opinion, there is a vicious cycle that forms before depression kicks in. So there are certain factors in your environment and in your day-to-day life that lead to the vicious cycle. But I think apart from that, your thinking is a big part of how the vicious cycle forms, because the vicious cycle will have a few components from your daily lives, like you had a bad relationship, a bad breakup, or I think the vicious cycle happens because there is different situations that arise in your life, and then your mind becomes delusional about it, and you think that perhaps these situations are because of you, and these situations have sprung up because of your inability or your actions, and सो then you start having delusions, and then you go into the deep dive of depression, I think. ऑलराइट. सो यहाँ पे मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ जो भी सुन रहे हैं उनके लिए. क्वेश्चन ये था कि जो डिप्रेशन का कॉज है क्या वो टोटली सर्कमस्टेंशियल होता है या नहीं, क्या इसमें एक इंडिविजुअल का अपना पर्सनल रोल होता है या नहीं. तो इस पे एनाबिस का ये कहना है कि यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आपका सिचुएशन ख़राब है, अगर आपके मन में ये थॉट सेट इन करता है कि द ख़राब सिचुएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं दे अकर्ड बिकॉज ऑफ यू और इन सम फॉर्म यू आर रिलेटेड टू दैट, तब आप डिप्रेशन में जाते हो. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज अगर सिचुएशन ख़राब हो रही है और आपका उससे कोई लेना देना नहीं है तो यूजुअली लोग उन सिचुएशंस का कोई एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं, और वो एक्सक्यूज़ यूजुअली सामने वाले पे होता है, खुद पे नहीं होता है यूजुअली. बट अगर आपका इस टाइप का माइंडसेट है कि हाँ मेरी वजह से हुआ है, तो आई थिंक या दैट्स अ फेयर पॉइंट. So just adding a bit to what Humble said, कि it at a certain point it comes down to how you handle the situations which arise in your life. मतलब मैं I think it was Harvard की study थी एक, which said कि जो आपका temperament है, I mean how you look at
your life events or how you take responsibility for it, that defines or that shapes your behavior and your, I mean, mental processes to a certain extent. So I mean, I agree with Humble ki how you handle your situations that have some say in defining your mental state. Okay. Okay, मैं कुछ इस पे बोलना चाहूंगा. Humble said कि this is entirely circumstantial, ठीक है, या it might be arising intrinsically in a person, but as a young kid who could not make any sense out of मेरे आजू बाजू क्या हो रहा था, I thought I was the person who had the flaws, and we are taught from the start कि flaws तो मैं पहले. If 1,000 people say something, then either you should confirm with their ideas or you are stupid. Yeah, you're wrong. So I was going through books. I was reading, and I came across this book called The Reveries of a Solitary Walker. Okay. तो क्या है कि मैं उसके बात को मैं ले सकता हूँ कि okay, what he says has some weight. So he wrote, I should have loved mankind in spite of themselves, and it was only by throwing off humanity that they could avoid my affection. So here was a man who was blaming the entire world for his sorrow, and I felt good कि अगर a great man like him can say that, perhaps I can find comfort in the idea that circumstantial causes of depression is one of the valid reasons of depressions, right? Makes sense. Like, did you feel vindicated, right? I mean, yes, or validated in some sense. Yeah, true. Butcher, right? Like genetics, right? Does genetics have a role to play in Yes, obviously, genetics का depression पे बहुत बड़ा role है. See, as I said before, हमने पहले भी कभी ऐसे बात किया था randomly, तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था. तो जेनेटिक्स कैसे अफेक्ट करता है कि जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, राइट? नाउ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफर्स यू टू चॉइस, एंड ये बहुत सारे डिस्कशंस में भी हमने सुना होगा कि यू कैन आइदर रन टुवर्ड्स द गुडीज और यू कैन किल योरसेल्फ. Now, our genes have been programmed in such a way that we don't run off towards the option that gets us killed, but rather towards that which gets us further into the population को आगे बढ़ाने वाला जो criteria है वो. So this is translated in our mind. जो genes का जो काम है, it becomes translated in the mind as running towards the pleasure. अब हमारा एंटायर न्यूरल मैकेनिज्म बना ही इस चीज के अराउंड है कि हमारा प्लेजर मैक्सिमाइज होना चाहिए एंड पेन शुड बी द लीस्ट. दिस इज नॉट यूटिलिटेरियनिज्म या एपिक्यूरियनिज्म नहीं बोल रहा हूं मैं. दिस इज एंटायरली हाउ ब्रेन वर्क्स. इट रन्स टुवर्ड्स द प्लेजर एंड इट रन्स अवे फ्रॉम पेन. इफ समहाउ हमारे अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई कि हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं एंड हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली पेन की ओर ऐसे ऐसे टिप कर रहा है, so perhaps that could be called as depression in the simplest term possible. So yes, it is under genetic influence. That is the simplest way I can say this. Also, like, that is there an angle that you think, or every one of you, can you think it being infectious, right? I mean, someone else around me has depression, right? It can potentially also infect me in that sense. If someone is happy, right, he can lend me some happiness, I can be happy with him. But then if someone is depressed, that is, I mean, yeah, I can also potentially fall into the same trap and be infected, so to say, right? That is a lovely question. ये एक बहुत ही मतलब एक मेमोरी से याद आ रही है मेरे को कि एक फ्रेंड था कभी back in the days. He said कि you give me a negative vibe when I had depression and when I was around him, and I did not mind anybody's business, but I would just be sullen all the time, long face के साथ. And he said out of the blue, he said, you have that negative vibe. And मैं समझ सकता हूँ उसने क्यों बोला होगा. Perhaps he was being so tormented by the negativity जो मेरे अंदर से आ रही थी that he had to say it. वरना मुंह पे कौन बोलता है? But he said that. So I guess there could be कि ये infectious हो. Maybe I make somebody else feel put off. So could be not, depends upon the person. Maybe you were just looking for a way to vent Interesting. out. Interestingly, yes, it depends on the person and how the person is feeling, right? One of my friends, he went through a really bad breakup. Like,
स्कूल का रिश्ता, राइट? एकदम बहुत सालों का रिश्ता, राइट? ही वेंट थ्रू अ वेरी वेरी बैड ब्रेकअप, and I was on a high in my life, like absolute high, matlab the highest, the peak of happiness, right? So he just had a breakup, and I came back to my hometown, we met, and he was trying to sort of, he was trying to vent out his pain, trying to share his bit with me, right? But then I was on such a high, right? I mean, just tuned out of it. I could not catch it. I could not understand it, right? It did not have any effect on me. I could not process it, and I mean, yes, I could not lend him, a good set of ears. I could not sort of give him that shoulder, right? And he really wanted to share his sorrows, but I was not there. I was standing there. I was in that sort of place, but then his I could not understand it. Because I was, I was in a different world altogether. I was really happy at that time, right? But then when I sort of look back at it, right, after some time, right, and I was just sitting, and मैंने सोचा उस दिन के बारे में, and I'm like, यार, उस दिन what the fuck happened, right? वो मेरा दोस्त, he was trying to tell me what he's going through, right? And मेरे दिमाग में ही कुछ, मेरे चमक ही नहीं रहा था वो जो बोल रहा है, मैं अपने ही धुन धुन में खोया हुआ था. So yes, it also depends on the person, and what that person is feeling. If he might be impervious to sorrows at that point, and मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा. हाँ, अबाउट दिस इशू ये ऐसा हो जाता है, इट बिकम्स अ टू वे विंडो कि उनको भी पता नहीं है कि कहाँ किसे आपने वेंट आउट करना है, और अपन को भी पता नहीं पड़ता कि जो कर रहा है उसको कितना डीप इशू है. तो इसी में हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो जाता है कि ना किसके साथ में वेंट आउट करना है, किसके साथ नहीं करना है. अपन को पता नहीं पड़ता कि वो किस लेवल पे है उस चीज के. Yeah, I guess relatable नहीं होता है तो it becomes difficult for the other person to understand. Like that's Yeah. why AA circles work in America, I guess, because they are all going through somewhat the same issue and they discuss it. All Also, they I do is think, vent out there. They don't provide solution. of course, मतलब एक एपिसोड होना जरूरी होता, मतलब for me that was once when, I know for sure कि someone was trying to tell me stuff and trying to share stuff, or I was not there, I was not present, right? तो एक बार मेरे साथ हो गया. Now whenever, someone tries to talk about, what they are going through, so I'm very attentive now. अब मेरे को पता है कि एक बार थोड़ा मैंने गलती कर दी, so now I've been there. So now I know कि अगर अब कोई बता रहा तो I will sort of be patient, और मैं सुनूंगा, और I will, मतलब मैं अपनी नहीं चालू करूंगा, and I'll sit down and I'll listen to him कि यार हाँ तू बता, tell me what's wrong. तो हाँ, I think वो एक बार होना जरूरी होता है, या फिर जो बता रहा है he sets the stage right, कि यार मैं को मतलब हाँ उस तरीके से. I don't know, मतलब really. हाँ, इंडिया ये भी हो जाता है कि वो वेंट आउट कर रहा है तो अपन को बस लिसन करना जरूरी है, रिजोल्यूशन दो, ये एक मेन पॉइंट रहता है. Yes, हाँ, टोकिंग बच्चों. ने जो बट बोला इसको है कि इस चीज़ से आप एक बार डिविएट कर रहे हैं. हमें हमारा क्वेश्चन ये था कि हम डिप्रेशन और नॉर्मल ग्लूमी मूड है, हम उस चीज़ को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, राइट? अभी ब्रेकअप को क्या आप डिप्रेशन में गिनोगे? So Again, मैं जिस situation. दोस्त की बात कर रहा हूँ, he was depressed, like insanely depressed, मतलब 1-2 साल का सीन था उसका, right? He flunked his exams, जिसके लिए उसने 1 साल प्रिपेयर किया था, and he was like down for like a couple of, मतलब he would break, मतलब he would break into tears randomly. चल रहा है, फिर रहा है, कहीं बीच में फंस जाता था, मतलब उसका चलते काम करते करते रुक जाता था, and कहीं अलग ही खो जाता था, मतलब it was really bad, right? So that is legit depression. So this is one clear differentiator between regular sadness and depression, is that depression is very long term. You will feel a certain way for a very long period of time, like 6-7 months, maybe years. But if you're sad about maybe like getting less marks or something, the feeling might be similar for some time, but it will fade away eventually. Exactly. हाँ, इनफैक्ट इसके फॉर्मल डेफिनेशन भी, मतलब ये एक मेजर पॉइंट है कि इट्स समथिंग दैट इज एटलीस्ट मतलब 2 हफ्ता तो रहेगा ही, और काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं इसके. हाँ, मतलब if you notice जो रेबन ने बोला कि इट इज लॉन्ग टर्म, तो तुमने नोटिस किया होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जब भी कोई फ्रेंड दुखी हुआ कि सपोज ब्रेकअप हो गया एंड ही इज वरिड, ठीक है, तो उसके दोस्त लोग आके बोलेंगे कि चल थोड़ा मैन अप हो जा, थोड़ा सा ट्राई टू फॉरगेट हर, ट्राई टू फॉरगेट दैट पर्सन, थोड़ा कुछ बिजी हो जा. बट समटाइम्स दैट माइट बी अ कॉज to depression, and depression cannot just be cured like that. तुम उसको voluntarily या will power के थ्रू क्योर नहीं कर सकते.
and how do you realize कि वो depression है when you realize the effects are have been prolonged. वैसे जैसे तूने रेवन ने तूने बोला एक बात बोली अभी, आई थिंक मुझे पूछना चाहिए कि लोग आके बोलते हैं कि गेट बिजी विद समथिंग यू विल फॉरगेट इवेंचुअली. इज इट एक्चुअली अ गुड मेथड टू कोप अप? जस्ट आस्किंग. it is a good method to temporarily cope up with the issue क्योंकि देख अगर तेरे को सर्जरी भी हो रहा है हाथ पे and you get distracted तो तेरे को पेन तो भूल जाएगा थोड़ी देर के लिए. इट इज जस्ट योर ब्रेन फोकसिंग ऑन. देखो ब्रेन कुछ सर्टेन स्टिमुलस ही एक टाइम पे अटेंड कर सकता है, किसी एक स्टिमुलस को ही. तो जब तुम बिजी होते हो तो तुम जो पेन का स्टिमुलाई जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, राइट? So that is just a temporary solution. I don't think it can serve as a permanent solution क्योंकि कभी ना कभी you will have to take leisure और तब the thoughts will all come back rushing like fountains and उसके बाद क्या करोगे? अच्छा, How will you solve that? अगर ये मेथड काम नहीं करता है तो व्हाट एग्जैक्टली डू द साइकियाट्रिस्ट डू व्हेन डिप्रेशन अकर्स? मतलब एंटी डिप्रेसेंट के अलावा. I would differ. I would beg to differ. I would differ. पहली बात तो I would differ on this, and I would have also like to sort of when sort of Butcher said right कि you cannot willingly cure it. Of course you cannot willingly cure it, and मतलब yeah, which also I want to say from my point of view, I have made a rule of thumb. You know, if anyone is sad, anyone is depressed, or anyone is going through a bad time, मैं बस सुनूंगा. I think I would never go and say कि यार अरे तू depressed है तो ये कर तो तेरा सही हो जाएगा. I would never say that. Somehow now I've come to believe कि वो गलत है. One, it does not work that way, and two, it sort of it is not right. मेरे को ऐसा लगता है. You know, I would कि वो he is going through it, and I cannot sort of come out of the blue and say अबे यार तू ये कर and it'll be okay. So वो now I have this rule in my mind कि यार कोई अगर कुछ बोल रहा है, कोई दुखी है, I would never give a solution. I would just listen. दूसरा बुचर ने बोला कि if you engage yourself in some other activity, it will not cure depression because when you sort of disengage, then the thoughts will come rushing back. Of course, I mean that is there, but then it is a long term thing, right? Depression itself is a long term thing, and the fight with depression is also a long term thing, right? So when you keep engaging yourself, it is like it's like sobriety. So if depression is a sort of drug or मान लो उसका एक sort of नशा है, right? Engaging yourself in some other things is the span of sobriety, right? And धीरे धीरे when you keep increasing that span of sobriety, जब तुम मतलब दिन में अगर तुम 24 घंटा डिप्रेस्ड हो रहे हो, उसमें से अगर तुम 8 घंटा कुछ और चीज में एंगेज कर रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, तो 16 घंटे तुम डिप्रेस्ड नहीं हो, फिर बचे ही 8 घंटे डिप्रेस्ड हो, फिर धीरे धीरे यू श्रिंक इट डाउन, राइट? मतलब ऑफ कोर्स जब तुम डिसएंगेज करोगे तो तुम वापस डिप्रेस हो जाओगे, बट देन धीरे धीरे बिकॉज यू आर आल्सो एंगेजिंग इन समथिंग एल्स एंड यू आर कीपिंग एट इट, so धीरे धीरे it will help in the long term because it is a long term game. That is what I feel. Yeah, exactly. Plus अगर किसी productive चीज में आप engage हो रहे हो and it is rewarding at the end, most likely it will overshadow the other thoughts that keep you depressed. Like Badsha said right कि it is like एक point के बाद sobriety will start appearing appealing, but ये भी तो है कि हम लाइफ में मिनट टू मिनट जीते हैं एंड प्लानिंग लॉन्ग टर्म का करते हैं. सो देयर इज अ डाइकोटमी बिटवीन द वे वी इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड एंड द वे वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड. व्हाटएवर वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड इज लॉन्ग टर्म. जैसे तुम अपना लाइफ प्लान्स बनाते हो, लाइफ गोल्स बनाते हो, बट तुम जीते तो मिनट टू मिनट हो ना. तेरी बात सही है, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो मतलब देखो मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ है, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? मुझे कभी भी नहीं हुआ है डिप्रेशन. बट अगर समथिंग मतलब अगर थॉट्स के बारे में बोलो कि यू गेट द सेम थॉट्स अगेन एंड अगेन, तो अगर मैं इसे ऑब्सेशन से रिलेट करूँ तो मुझे ऑब्सेशन हुआ है काफ़ी बार और काफ़ी लोगों को होता है. तो अब जैसे मुझे ऑब्सेशन हुआ है किसी चीज़ का, अब मैं दिन रात वही सोचता रहता हूँ. मैं जैसे ही मतलब मैं काम छोड़ा, मैंने सेम चीज़ के बारे में बैठ के मैं सोच रहा हूँ और मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. तो ऑब्सेशन अब मतलब लोगों को बहुत टाइप की चीज़ों के बारे में हो सकता है, ठीक है? किसी को किसी लड़के से ऑब्सेशन होता है, किसी को किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से ऑब्सेशन होता है, ठीक है? तो अब इवेंचुअली धीरे धीरे जब मैं बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा, आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन अदर स्टफ, तो वो ऑब्सेशन धीरे धीरे, जो ऑब्सेशन वाला टाइम था वो धीरे धीरे रिसीड करने लगा. करते इवेंचुअली लाइक 6 मंथ 8 मंथ्स के बाद अब मुझे वो थॉट ही नहीं आता है कभी. तो मतलब अब अगर मैं बैठ के सोचता हूँ तो मैं एक्चुअली लाइक अपने को थर्ड पर्सन में देख पाता हूँ कि अरे मैं क्या कर रहा था.
ऑफ कोर्स मतलब अब ऑब्सेशन और डिप्रेशन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि एंगेजिंग वन सेल्फ कैन बी, आई मीन इट हैज़ वर्क फॉर मी, बट दैट अगेन इज़ फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ इशू, बट इफ़ इट वर्क्स देन इट वर्क्स आई गेस. हाँ, तो एग्जैक्टली जो लाइक लास्ट पंच लाइन थी अंबल की कि इफ इट वर्क्स, तो मतलब कैंसर में ये काम नहीं करता कि मतलब आप योगा करो और आपका कैंसर क्योर हो जाए, क्योंकि बिकॉज इट डजंट वर्क दैट वे. लेकिन डिप्रेशन में इफ यू आर फीलिंग फाइन देन यू आर फाइन. मतलब अगर इट इज वर्किंग इन योर हेड देन इट इज वर्किंग इन योर हेड लिटरली. मतलब डिप्रेशन इज इन योर हेड. तो अगर तुम्हारे को अच्छा लग रहा है कुछ भी करने से, योगा करने से, या मतलब आई गेस स्टैंडिंग ऑन योर हेड और परहैप्स वैंकिंग ऑफ, तो then perhaps it is happening and it is curing your depression. तो the argument की है ना, काम करने से या कोई भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व होने से जो तुम्हें पैशनेट बनाती है, अगर तुम्हारा डिप्रेशन सॉल्व हो जाता है तो इट इज अ वेरी फाइन एवेन्यू टू वॉक अप टू या वॉक थ्रू. लेकिन मैंने ये वाइल रीडिंग अबाउट डिप्रेशन फॉर दिस टॉक, मैंने ये बहुत ही अच्छा सा एक एपिथेट है, एक साइको एनालिस्ट है जंग करके, तो यंग ने एक काफी अच्छा सा साइको एनालिसिस किया कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दो तरीके हैं. अगर आप डिप्रेशन को ट्रीट करना चाहते हो तो वन, यू कैन गो आउटवर्ड एंड यू गेट योर स्टिमुलस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, एंड वन इज गोइंग इनसाइड एंड लुकिंग इन द डार्कनेस. तो अगर आपकी खुद की लाइफ में कोई मेंटल ट्रॉमा है ऐसा जो कि बुरीड है, चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई ऐसा ट्रॉमा जो कि आप अभी तक फेस नहीं कर पाए हैं, तो डिप्रेशन इज अ सिम्टम या इफेक्ट ऑफ दैट ट्रॉमा. या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका माइंड डिप्रेशन के थ्रू नम्ब हो रहा है, या दिस इज अ फीवर ऑफ द माइंड विच इज नम्बिंग योर माइंड सो दैट वो ट्रॉमा जो आपके लाइफ में बुरीड है कहीं बहुत अंदर, वो बाहर ना आ पाए. आपको उसके साथ यू डोंट हैव टू कम टू टर्म्स विद इट. तो if you ever come to terms with that trauma, I think depression would alleviate itself, as it is only this effect of this. हम्बल, जैसा तूने कहा अभी कि तो ये when you are going through any obsession, तो you try to involve yourself in some other activity to kind of distract yourself from it, है ना? This is what I basically understood from your. Yeah, exactly. तो मतलब what I feel is कि मतलब इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा कि कुछ टाइम तक ऐसा किया, then when it comes back to you, मतलब when you again start getting those thoughts of obsession या जो भी है, so I think the relapse would be pretty bad. इस It पे would come back stronger than it was. इस पे मैं ये कहूँगा कि यार क्योंकि हम अब डिप्रेशन से ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन काफ़ी अलग होगा मेरे हिसाब से. अगर ऑब्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि जब आप किसी टास्क में इन्वॉल्व हो रहे हो ना, तो अगर वो टास्क ऐसा है जो प्रोडक्टिव है आपके लिए एंड इट रिवॉर्ड्स इवेंचुअली, फॉर एग्जांपल जैसे किसी कोर्स वर्क में इन्वॉल्व होना फॉर एग्जांपल, लेट्स से, ठीक है. तो अब अगर एट द एंड ऑफ द कोर्स वर्क यू गेट समथिंग इन रिटर्न, से यू गेट सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जिसके लिए यू आर गेटिंग पेड नाउ, ऐसा मान लो, ठीक है. तो आपको लगेगा कि आप खुद ही समझ जाओगे कि मैंने यहाँ पे जो टाइम इन्वेस्ट किया है इट वाज वे बेटर दैन जो मैं वहाँ कर रहा था. और क्योंकि आप ऑब्सेस कर रहे हो और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, तो इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ कि उसके बारे में सोच के अब कोई फ़ायदा नहीं है. मतलब ये टर्म्स में आना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ हाँ, एनी काइंड ऑफ ऑब्सेशन और ट्रॉमा. आपको मतलब जैसे अभी अनविस बोल रहा था एग्जैक्टली, आपके पास दो तरीके हैं, यू कैन गेट आउट ऑफ इट और यू कैन गो इनवर्ड्स. अब अगर आउट जाओगे तो देयर इज अ चांस कि आप वापस कभी ना कभी उसके बारे में सोचोगे एंड यू विल बी हॉन्टेड अगेन. बट अगर आप डीपर जाओगे और उसको फेस करोगे, या फॉर एग्जांपल कुछ ट्रॉमा हुआ है आपके साथ जो आप बस अवॉइड करते आ रहे हो, आप सोचना नहीं चाह रहे हो उसके बारे में, एंड accept it and come to terms with it. एग्जैक्टली. अगर आप रैशनल होके ऐसे सोचो कि ठीक है इट हैज़ हैपेंड, उसको चेंज नहीं कर सकते, बट अभी लाइफ मेरी बची है, अभी और भी चीज़ें करनी है, मैं अगर अपने लिए नहीं करना चाहता हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, राइट. तो अगर आप इस तरीके से ब्रॉड माइंडेड होके थोड़ा सोचोगे तो मे बी थिंग्स विल बिकम ईजियर. Got it. ऑन दिस टर्न, मतलब ब्रॉड माइंडेड सोच के टर्न पे मैं ये पूछना चाहूँगा, और मतलब क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी, कि इज़ अ ब्रॉड सोच, एज हम्बल कॉल्स इट, और
or a philosophical solution, a solution of a chemical imbalance like depression. मतलब क्या depression एक chemical और physical disease है, या is this a disease of the mind, और इसको एक philosophical तरीके से ही solve कर सकते हैं हम. Calling depression a chemical imbalance, I think it takes away from the complexity of the situation. I think Yeah, the true. chemical imbalance is a very dumbing down of the whole नहीं thing. बट इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि सब कुछ ब्रेन से ही आ रहा है राइट हाँ, I mean it मतलब obviously is, Yes, but उसको but just तुम summing it up उसको into ऐसे देखते words हो is तो कि not fair, I chemical think. balance is an after effect of the disease. Like हाँ, the functions of the brain will change itself to reflect your mood. Vice versa भी हो सकता है, but this might be the case in this देखो might be in the ये case of depression. कहना कि डिप्रेशन विल अल्टीमेटली बी बॉइल डाउन टू ऑल द प्रॉब्लम इन द ब्रेन, ये वैसा ही होगा जैसे कहना कि ऑल द वुंड जो हमें इन्फ्लिक्ट होता है उसका एंटायर चीज बोन ब्रेकिंग या स्किन लीजन ही होता है, ऐसा नहीं है. इट इज मच बियॉन्ड दैट. द फिजिकलिटी ऑफ डिप्रेशन इज दैट इट इज बीइंग इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन. ट्रू, न्यूरल सिग्नल्स का दिक्कत है ये. आई अंडरस्टैंड दैट. तो अगर But, वुंड वाला एनालॉजी दे रहा है ठीक है हाँ, तो आई थिंक ये एक अच्छा तरीका होगा अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझाना. Yes. तो अगर वुंड वाला एनालॉजी दे रहा है तो लेट्स गो विद इट. अब तू कह रहा है Yes. कि इफ़ यू आर वुंडेड तो हमारा Yes. जो स्किन लीजन है या जो भी एपिडर्मल डैमेज हुआ है तो दैट इज़ बेसिकली रिलेटिंग इट टू ब्रेन का केमिकल इम्बैलेंस. सो बेसिकली वी आर सेइंग कि वुंडेड होना, वुंडेड, Yes. वुंडिंग नहीं, वुंडेड होना इज इक्विवेलेंट टू केमिकल इम्बैलेंस होना. सो हम लोग आफ्टर इफेक्ट की बात कर रहे हैं जब हम वुंडेड होने की बात कर रहे हैं, राइट? Yes, we are talking about the physicality of the debilitating phenomena. Yeah. जो weakness causing phenomena है या जो भी तकलीफ दे रही है उस phenomena का physicality को हम बोल सकते हैं कि वो जो भी anatomical problems cause कर रहा है वो उसको बोल सकते हैं. जैसे कटना स्किन का in a wound या mind का improper functioning करना in depression. अच्छा वैसे So stopping you right there, I was thinking कि अब अगर हम analogy दे ही रहे हैं तो mental diseases की analogy अगर हम physical harm से देने लगेंगे तो हम लोग ये मतलब this is not doing justice to this argument, क्योंकि हम यही क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इज डिप्रेशन फिजिकल, मेंटल और बोथ. और अगर हम इसको कंपेयर करें किसी फिजिकल डिजीज के साथ में, एनालॉजी दें फिजिकल डिजीज के साथ में या फिजिकल इन्फ्लिक्शन के साथ में, तो दैट इज रॉन्ग ना, क्योंकि तुम एनालॉजी फिजिकल चीज के साथ में दोगे तो फिर वो फिजिकल ही साबित होगा डिप्रेशन भी. नहीं, तो आई गेस एनालॉजी केवल उसका, मैं उसके फिजिकलिटी का वो बोल रहा हूँ एनालॉजी, ना कि मैं एंटायर डिप्रेशन को फिजिकल नहीं बोल रहा हूँ. यार मैं बोल रहा हूँ कि the manifestation of यहाँ पे अगर ये चीज़ है ना कि जैसे द थिंग इज हम लोग अभी भी ब्रेन को उस हिसाब से समझते नहीं है ऑन अ साइंटिफिक लेवल. मैं ऐसे लाइक ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली अपने पास जितनी एडवांसमेंट हुई है हम उसमें ही ब्रेन को अभी तक समझ नहीं पाए हैं. तो अगर हम जस्ट सेइंग इवेंचुअली एक पॉइंट आए जब हम लाइक न्यूरल कनेक्शंस तक पिन पॉइंट कर लें कि इस बंदे का इस कनेक्शन की वजह से ये चीज़ हो रही है, तो उस पॉइंट पे इवन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ऑफ कोर्स ये होने में बहुत टाइम लगेगा, बट उस पॉइंट पे ये हो जाएगा कि यू जस्ट सेवर अ न्यूरल कनेक्शन एंड दैट्स इट. वो थॉट इज आउट, वो ट्रॉमा तेरे साथ कभी हुआ ही नहीं था एंड यू आर टोटली फाइन. तो क्या ये यू माइट नेवर नो, ये बहुत जल्दी हो सकता है. इमलॉन इज वर्किंग ऑन इट. न्यूरल लिंक, राइट? सो अगर अपन क्लिनिकल डिप्रेशन जो जैसे अनुबिस ने पूछा व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन, इज डिप्रेशन क्लिनिकल और फिलोसॉफिकल, तो मैं बता देता हूँ डिप्रेशन इज रादर अ स्पेक्ट्रम देन अ एक्चुअल डिजीज. ऐसे बोले तो इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स, जिसमें क्लिनिकल डिप्रेशन इज सेड टू बी द मेजर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. इट इज डिप्रेशन एट इट्स जेनिथ, द पीक. इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सर्वाइवल मशीनरी है उसका फंक्शनिंग इम्प्रॉपर होने लगता है. द लॉस ऑफ वो कहते हैं ना कि खाना खाने की इच्छा नहीं होती, या इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन, राइट, लॉस ऑफ विल टू लिव. yes, Right. loss of will to live, the entire basis of biological machinery जो हम हैं
वो है कि टू सर्वाइव, टू Also, प्रोपोगेट. Yes, Raven. it will not manifest in the same way in everybody. One person will eat more, one person will sleep more, one could move slowly. So the symptoms cannot be generalized. They manifest differently according to the individual. The only common thing that I could think of they have is the lack of general motivation to keep living. Right, and it is a spectrum in both ways, right, in terms of the sort of different kinds of ways in which it manifests itself, or the different symptoms that it presents, and the severity, right. The severity is, it is also, the severity is also a spectrum, and the response that would work, right, that might work or that might cure, right, that would also depend on the severity as well. That is true. That is true. तो क्लिनिकल के उसमें अपन बेसिकली यही बोल सकते हैं कि द लॉस टू द विल टू लिव, इट मे बी मैनिफेस्टेड एज द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ईटिंग और ओवर ईटिंग, कुछ भी हो सकता है. तो ये स्पेक्ट्रम का पोलैरिटी जो है वो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, किसी भी साइड वो इधर उधर हो सकता है. सो It is अगर like a pendulum. एक शब्द में बोलूँ तो इट विल बी एबनॉर्मलिटी, बट वो किस टाइप का एबनॉर्मलिटी होगा दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट. यहाँ पे नॉर्मल बोलना क्या होता है, बिकॉज आज के दुनिया में Normal is also subjective to the individual. Yes, Abnormal, exactly. according to the individual, would indicate something wrong. नहीं, This हम is हमारा this is a entire discussion for another day. I mean, ये normal Yes. वाला discussion. ट्रू. तो हमारा नॉर्मल मतलब होता है जो एस्टैब्लिश्ड, हमारा जो रैशनल ब्रेन है वो कुछ यूनिवर्सलिटीज में एग्री करता है. जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सल्स हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, कलेक्टिवली ह्यूमंस ने एग्री कर रखा हुआ है विदाउट अ फॉर्मल राइटिंग या किसी टेक्स्ट बुक के भी. हमने एग्री कर रखा है कि कुछ एक्सेप्टेड बिहेवियर्स आर नॉर्मल, क्योंकि एंटायर मेडिसिन उसी माइंड का एटलीस्ट उसी बेसिस पे वर्क करता है कि some behaviors are considered normal, some are not. And यहाँ पे हम ट्रेडिशंस की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल वो बायोलॉजिकल बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं जो सब में होता है. तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि कुछ जगह हो सकता है अपने आप को सेल्फ फ्लैजिलेशन इज कंसिडर्ड नॉर्मल इन सर्टेन सोसाइटीज. तुम अपने पीठ पे जानबूझ के अपने आप को विप करते हो, दैट इज नॉर्मल. इन सम सोसाइटीज दैट माइट बी कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मैडनेस. सो हम जब स्टडी करते हैं नॉर्मल बिहेवियर की, तो हम बहुत ही माइनर, मतलब बहुत ही छोटे रीजन में देखते हैं, और वो छोटे रीजन हर सोसाइटीज में, हर लोगों में यूनिवर्सल होता है. That's a good point about being normal. So I guess I think primitive चीजें normal होती हैं, जैसे कि the will to live, the will to eat, the will to get up and do work, the will to propagate your progeny. ये सारी चीजें जो कि जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन से कंट्रोल होता है या प्रिमिटिव चीजें हैं, ये सब अगर आदमी कर रहा है तो आई थिंक फॉर वन ही इज, आई थिंक, नॉर्मल. उसके बाद उसकी जो सोशल लाइफ की वजह से एंटेंगलमेंट्स और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो एबनॉर्मल बनाती हैं उसको. तो आई गेस Yes, one of the best ways to detect कि depression है कि नहीं, sleep pattern. Sleep pattern is universally agreed to be one of the best parameters to identify कि depression है कि नहीं. तो यहाँ पे अगर एक ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आई थिंक एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो है कि सबको सरवाइव करना है और एक जनरेशन आगे लेके जाना है. मतलब सबका बेसिक इतना तो काम होता ही है, चाहे वो एक नॉर्मल अमीबा हो, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, या चाहे एक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एक हाइना या लायन. ठीक है, किसी का भी मोटिव ये नहीं होता है कि मुझे आगे नहीं जाना, आई वांट टू डाई. तो आई गेस उससे अगर डिविएट कर रहे हैं तो इट कैन बी टर्म्ड एज एबनॉर्मल. एनिमल्स में भी ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है क्या? Yes, एनिमल्स में भी डिप्रेशन की एक्टिविटी देखी गई है, क्योंकि अपन जब माइस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनका भी ये बिहेवियर चेंज होता है. बट एज आई सेड कि जो ब्रेन है, इट इज लाइक, तुम इमेजिन करो कि तुम घर बना रहे हो एंड तुम ब्रिक के लेयर डाले जा रहे हो. सो ब्रेन वाज एवोल्यूशनरीली बिल्ट लाइक दैट. फर्स्ट केम द एंशिएंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो मोस्ट ऑफ द
इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। यहाँ पे तुम्हारे नखरे या प्रेफरेंसेस या बायसीज काम नहीं करती हैं, यहाँ पे वो वैसे ही काम करता है जैसे उसको पसंद होता है। दैट इज सर्वाइवल के लिए एसेंशियल। ओके बट जैसे जैसे ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, सर्वाइवल बिकम्स द लेसर इम्पेरेटिव एंड your preferences opinions start mattering. When you start walking from the hindbrain, the medulla oblongata, and to the prefrontal cortex, you start observing that preferences opinions वो आने लगते हैं। तो तुम्हारा हो सकता है एंशियंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहे कि कुछ भी खा ले, जिंदा रहना है, लेकिन तुम्हारा मॉडर्न पार्ट ऑफ द ब्रेन बोलेगा कि ये खा क्योंकि तेरे को ये पसंद है। अब डिप्रेशन जो है, इस लंबे से लाइन में मल्टीपल कारण हो सकते हैं, समझ लो कि पहला अंडरलाइंग कॉज ऑफ डिप्रेशन कुड बी कि, एंड दिस इज जस्ट मी पोस्टुलेटिंग, स्पिटबॉलिंग, हो सकता है मैं गलत हूं, बट दिस मेक्स सेंस कि तुम्हारा एंशियंट पार्ट ऑफ द ब्रेन दुखी इसलिए हो जाएगा कि उसको खाना नहीं मिल रहा, इसका सर्वाइवल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे होंगे। बट तुम्हारा जो मॉडर्न पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो इसलिए दुखी हो रहा है क्योंकि उसका प्रेफरेंस नहीं फुलफिल हो रहा है। कुछ लोग करेला खा के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग करेला खा के दुखी हो जाते हैं। तो ये वो वही वाली बात है। तो इतने लंबे लाइन में तुम्हारा डिप्रेशन कहीं पे भी लाई कर सकता है। सो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो करंट या मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स में डिप्रेशन अकर होने का मेजर रीज़न ये हो सकता है, मेजर रीज़न ऐसे ब्रॉडली बोल रहा हूँ मैं, कि उनके प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ें अभी तक हुई नहीं है लाइफ में, एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट एनी मोर। ट्रू। फॉर एग्जाम्पल इसका मल्टीपल कॉज हो सकता है। जैसे मान लो कि व्हाई इज ब्रेकअप कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर डिप्रेशन? बिकॉज आई थिंक ब्रेकअप का फंडामेंटल रीजन तो ये है कि आपके जो पर्सन जिसके साथ आप लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हो वो आपको नहीं मिली यार। वो आपकी मतलब ये No, चीज it is more the, you know, it is more of a a more trend. primal response. It is more a primal response. नहीं, it's a primal response. वही You are hardwired that way, right? You know, it comes from evolution, right? When something of that sort happens, right? मतलब you are a family, you are a caveman, and you have a wife, or maybe multiple wives, or maybe one wife, जो भी है, and you are a family, and you know, when you are outcast, right? So when you are outcast, your chances of survival drop drastically, right? जब तुम एक छोटे से ग्रुप बना के रह रहे हो और साथ में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो in the hunter gatherer sort of situation, right? So that thing is very much hardwired into your brain right now. It is also there right now, and which is why, you know, when बहुत close relationships जब टूटते हैं, be it a breakup or be it any close relationship that sort of spoils, right? That thing kicks in. अभी it does not matter, अभी तुम्हारा नहीं, survival this is the root cause of why we feel lonely. हाँ, ये तो loneliness is the response of the brain so that you there is a stimulation for you to go back in the group. तो यहाँ पे ब्रेकअप और ग्रुप बहुत अलग चीज हो गई मेरे हिसाब से। नहीं, ये सब अंडरलाइंग, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एज आई सेड, वो प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन से लेकर मॉडर्न पार्ट ऑफ द ब्रेन तक की ये जर्नी में ये मल्टीपल फैक्टर्स में तुम इसको बोल सकते हो। पहला तो जैसे रेवन ने बोला, लोनलीनेस इज अ सिग्नल बाय द ब्रेन टू गो बैक टू द ग्रुप। सी, once you say it like that, all of a sudden a important facet of depression becomes a signaling of the brain. कितना अमेजिंग है ये। मतलब मैं अभी ये सोच रहा हूँ तो मतलब ये बहुत ही अलग एक वो हो गया कि इट इज अ सिग्नल, इट इज अ new dimension that has been, you know, he has lent a new dimension to the discussion in that sense. Yes, that's true. But loneliness is not equivalent to depression, क्योंकि loneliness आपको उकसाता है लोगों के पास जाके बात करने के लिए। लोनलीनेस में आप लोग ढूंढोगे बात करने के लिए, डिप्रेशन में आप ये नहीं करोगे। डिप्रेशन में you try to seclude yourself, right? He's saying depression might be a signal of the brain for something. Yeah, whatever that thing is. ये चीज तो सच है। might be. It has been I think a researched topic, I guess, कि loneliness comes from our evolution। ये एक फिनोमेना है जो अकर होता है so that हम ग्रुप से बाहर ना जाएं, because humans happen to be social animals। तो अपने को ग्रुप में रहना अपना सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ काफ़ी पहले से आ रहा है और हमारा ब्रेन इसीलिए हार्डवायर्ड है कि हम अगर लोगों से दूर जाते हैं वी फील दैट लो। बट
लोगों से दूर जाने पे हमें ये फील नहीं होता है कि हमारा विल जा चुका है कुछ करने का. वी फील द अर्ज टू अट्रैक्ट पीपल मोर. हम और चीज़ें ट्राई करते हैं ताकि हम ज़्यादा अपीलिंग लगे. इसीलिए यूजुअली क्लास के जो लोनर्स होते हैं दे ट्राई डिफरेंट थिंग्स कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, राइट. अब इवेंचुअली अगर इफ़ दे मेक अ फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग जो यूजुअली मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है. बट डिप्रेशन आई थिंक एक अलग ही टैंजेंट है लोनलीनेस से मेरे हिसाब से. या लोनलीनेस, आई मीन इट, मतलब वो आपको फोर्स करता है कि आप एक टारगेटेड वे में एक्ट करो सो दैट यू कैन इरेडिकेट इट. मतलब Yes. लोनलीनेस सो दैट यू डोंट बी लोनली एनीमोर. Yes, बट आई exactly. डोंट थिंक डिप्रेशन विल डू दैट. बहुत ही ऑपोजिंग सा व्यू देना चाहता था मैं इसका. हाँ. We are not saying that loneliness is like depression, or we are saying that there is a clear connection between those. Depressed people are often lonely. People who are in the herd, people who belong to the herd, people who are quite extroverted can also be lonely. तो मतलब loneliness is not only getting ahead of the group या getting मतलब separated from the group. It can also be a condition of the brain where you are surrounded by people and you still feel lonely. मैं कह रहा था जैसे बोला ना कि एक्सट्रोवर्टेड पीपल कैन आल्सो बी लोनली. तो लोनलीनेस में एक और आ जाता है ना कि आप किस हर्ड की बात कर रहे हो. हाँ, मेरे को समझ में आया तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा जो डेफिनेशन है लोनलीनेस का वो तो यही है ना कि जो कि रेवन और हम्बल बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द हर्ड देन यू फील लोनली. ये डेफिनेशन बोलने की कोशिश कर रहे हैं मेरे हिसाब से. तो इसमें जो हर्ड की बात हो रही है वो हर्ड है जिसकी वजह से तुम सरवाइव कर रहे हो इस वर्ल्ड में. तो यू कैन बी सराउंडेड बाय मेनी पीपल, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, लेकिन फिर And भी still तुम be लोनली lonely. कर सकते हैं. हाँ. यस एग्जैक्टली. ठीक है, तो वही. हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था. So like Butcher said, right? So there is sort of a spectrum wherein matlab, I mean there's a line, right? There's your primitive brain and there's your forebrain, which is your modern brain, right? Now so depression can lie anywhere, right? So in matlab, what would you say, what would you consider more severe? I mean, or maybe if it might be sort of offensive in some way, but then I'll still go ahead and say it, right? So I mean, if I say that, if your modern brain is depressed, I mean, then it is more easily fixable, and it is kind of, matlab, so if you're not sort of getting, your preferences are not met, but your basic needs are met, and still you're depressed, that means it is sort of a luxury. I mean, in that sense, right? No, that is actually very true. अगर आप पुराने टाइम के केवमैन का लोनलीनेस कंपेयर करो आज के टाइम के डिप्रेशन से, तो आई थिंक पुराने टाइम का लोनलीनेस वुड बी मच मोर डेंजरस, क्योंकि वहाँ पे लोनली का मीन यू विल गेट ईटन बाय सम एनिमल. और अभी का डिप्रेशन इज़ लाइक ठीक है सब कुछ है मेरे पास, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. Also, एक और मैं सोच रहा था, मतलब, so when you're having a discussion about depression, right? Will it be morally incorrect to have a fun discussion about depression, to have fun in the discussion? There is absolutely no I think it would be amazing अगर हमने इसको एक जैसे अपन काउंटर कल्चर एम्प्लॉय करते हैं नॉर्मली हर चीज में. वी ट्राई टू एम्प्लॉय रेसिज्म टू मेक रेसिज्म अपीयर स्टूपिड, या वी ट्राई Exactly. Yes, To that is one of the best ways. open that dialogue. I mean, yeah, to make that dialogue the new normal, basically. Yes, we should. Right. We should. तो आप अभी ब्रेकअप की बात कर रहे थे. लेट्स टॉक अबाउट इट. आई थिंक ये सबने कभी ना कभी फेस किया होगा, राइट? Obviously. सर प्रेजेंट सर. It is a luxury. भाई किस पे फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, तो अब मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे यूजुअली अगर जैसे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिसमें आप 7 साल 8 साल से हो, उसके बाद अगर आपका ब्रेकअप होता है तो दैट इज़ समथिंग सीरियस. क्यों? क्योंकि इट विल बी बेसिकली लूजिंग समवन वेरी क्लोज इन द सेंस जैसे बेस्ट फ्रेंड टाइप का आपने लूज़ किया, समवन यू एब्सोल्युटली ट्रस्ट. तो वो लॉस वर्सेस आपने
गर्लफ्रेंड बनाई और 1 महीने में छोड़ कर चले गए और आप दारू पी के पड़े हुए हो, ठीक है, तो दैट इज स्टूपिड कि आप मतलब जस्ट मिले हो एंड फॉर सम रीजन यू फील कि अरे बस यही है सब कुछ. तो ये So in my opinion, if something like that happens to you, then the breakup is not your primary concern. There is something inherently wrong with how you live your life. बादशाह ने बोला था कुछ दिन पहले कि लोगों का ट्रेंड हो गया है मूवीज देख के, गाने सुन के, कि यार ब्रेकअप होगा. It's about us getting socially conditioned or picking up our behaviors from movies or songs or whatever, stuff that we are exposed to, right? I mean, breakup hua, so how do you react to a breakup? Jhagda hua, how do you react to that, right? But then sort of movies tell you that you have to react in this particular manner. Agar tumhara breakup hua hai, so you have to go drink, you have to act sad, you have to listen to these kinds of songs, you have to go, मतलब तो हाँ, मतलब वो उस तरीके से. सो यू डोंट नो, मतलब इफ मतलब अगर तुमने वो मूवीज नहीं देखी होती, यू माइट नॉट सॉर्ट ऑफ नो कि कैसे रिएक्ट करूं ब्रेकअप पे, राइट? देन यू वुड, मतलब तुम थोड़ी फिर जाके यार ऑटोमेटिकली, मतलब एक बंदा सोचता कि अच्छा ब्रेकअप हुआ है, व्हाट शुड आई डू? अच्छा एक काम करता हूँ, सैड गाने सुन लेता हूँ. नहीं, मतलब क्या पता फनी लगता बंदे को, मे बी. आई डोंट नो, मतलब हाँ, मतलब क्या ब्रेकअप हुआ होता तो मे बी शायद दूसरे दिन ही दूसरी बंदी ढूंढने चला जाता. हु नोस? बट देन सोशली तुमको कंडीशन That किया is कि यार entirely possible. कल ही तो ब्रेकअप हुआ है यार. Does ऐसे anyone कैसे does anyone remember that law which we studied in college, that giving something a name gives us power over it, अरे because then it becomes real. अरे वो Rumpus Skin principle. So exactly. that I think that applies very handsomely over here. So imagine someone in 1870s not knowing what depression is, and then he's just sad someday, and next day he is up and about. Imagine if he woke up that day and said that he was depressed, and that gave him a reason to stay sad. That could be happening today. मोस्ट लाइकली मतलब- ऐसा होता, वो उठता और वो बोलता कि यार बहुत लो फील कर रहा हूँ. यार I cannot do anything about it. ये तो clinical चीज है, out of my control. They had bigger concerns in 1870s. Exactly. Who knows, he might wake up and like someone shoots him between his eyes. who knows, you wake up and you see 2 sons. Van Gogh जो था, Van Gogh I think had Exactly. Exactly. मतलब बंदे का पूरा करियर, मतलब he was a painter who had passion for painting, और बंदे को सबने रिजेक्ट कर दिया, society kicked him out and he made 300 paintings I think every day, जितना मुझे याद है. I don't know the exact Every stats, day. but Every brutal. day. मुझे एग्जैक्टली मैं याद नहीं रख पाया, एक वीक में हो सकता है, बट उसने अराउंड 300 पेंटिंग्स वो बनाते रहता था. मतलब फ्रीक्वेंसी You sure it was a painter and not a printer? I just don't know, man. Depression may make you do wonders. But the truth is कि Van Gogh ने अपने डिप्रेशन को मैनिफेस्ट कर दिया by painting like ludicrous amount of paintings. ठीक है? So that was his response. And then when he died, अब उसके पेंटिंग्स 1-2 मिलियन में बिक रहे हैं, डॉलर्स में, by the way. तो he had a reason for being depressed because he knew कि उसका क्या है, and still people were just kicking him out. वो ये कर रहा था. And look at us today. आज अगर हमारा कुछ नहीं चल रहा हमारे मन से, तो हम बोलते हैं कि okay, we blame society. That is one of the best ways. मतलब I think communism has given us that tool to just push it. तो हम ये करते हैं. So there's a difference down the line. अगर हम देखें हिस्ट्री कैसे डिप्रेशन को हैंडल करवा रही है हमसे. I think मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि मतलब 1000 साल पहले, राइट, 1000 साल पहले कैसे डिप्रेशन लेट्स आई मीन आई वांट टू डाइग्रेस. जो बीच में हम लोग बात कर रहे थे, राइट, लेट्स से मतलब जो भी ब्रेकअप हुआ या जो भी एक रोमांटिक इंटरेस्ट, राइट, उसके साथ नहीं जमी, राइट, देन व्हाट वाज 1000 साल पहले इंडिया में एक गांव में what would be the average man's response अगर उसको उसकी मनपसंद बंदी नहीं मिली, मनपसंद बंदी पड़ोस के गांव में शादी हो गई मनपसंद बंदी की, या जो भी है, what would his average response? बादशाह का ये क्वेश्चन मुझे मतलब बहुत ही ज्यूसी लग रहा है, मैं क्या बताऊं. और एनोबिस को भी ये आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज जैसे माइकल फोको का मैंने एक डिस्कशन कभी देखा था, इन विच ही सेड कि
ह्यूमनिज्म जो है एक बहुत ही इन्फेंट टॉपिक है। ह्यूमनिज्म, अब मैं क्यों ह्यूमनिज्म बोल रहा हूँ, क्योंकि द वेरी आइडिया कि डिप्रेशन हो भी सकता है, साइकोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, या ह्यूमन ब्रेन का मूड एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी बहुत ही रिसेंट है। इससे पहले पीपल डिड नॉट इवन केयर अबाउट साइकियाट्री या हाउ द मेंटल स्टेट ऑफ द, क्योंकि उस समय पूरा गॉड के अराउंड सेंट्रिक था। रिलीजन, स्टेट रिलीजन वुड डिक्टेट, जैसे अपन के रेने देकार्त ने भी बोला है, je pense donc je suis in French, which means I think therefore I am. It is a very controversial statement. इसने क्या कर दिया कि it shifted the mind of the man from religion to humanism. अब ये क्या करता है, ये डिफरेंस क्या है? पहले एक गॉड होता था जो डिक्टेट करेगा कुछ कमांडमेंट्स, इट कुड बी मोसेस का 10 कमांडमेंट्स, इट कुड बी एनीथिंग। उस हिसाब से अगर तुम चले तो इट इज द राइट बिहेवियर, उस हिसाब से नहीं चले तो तुम यू आर डूइंग ब्लास्फेमी। तो वहां पर डिप्रेशन का सवाल ही नहीं आता है। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग अदर देन व्हाट द कमांडमेंट से, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, सो चेंज इट, टर्न बैक एंड डू एज द कमांडमेंट से, यू विल बी हैप्पी। भले ही तुम दुखी हो, अंदर से मर रहे हो, बट यू विल हैव टू, यू हैड एन एक्सप्लेनेशन कि कमांडमेंट्स है ना, पत्थर पे लिखा है ना, टैबलेट पे लिखा है ना 10 चीजें, उसको करो। By the way, So, rape is not mentioned in that, as Louis C.K. ने भी जैसे बोला था, it is not mentioned, rape नहीं mentioned है उसमें कि मत करो। उसमें ये कहा है कि do not say the Lord's name in vain। ऐसे ऐसे चीज हैं जो तुम्हें, अगर तुमने कर लिए फुलफिल, तो तुम सही जी रहे हो। so, डिप्रेशन का बहुत so do you think Homo sapiens का जो intelligence factor है, which makes it curious about things, which makes it defy rules, या which makes it look into the darkness, क्या ये अपने लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेबेलियन इज वन ऑफ द वेज हाउ स्टैग्नेंसीज फॉट विद। अगर तुम स्टैग्नेंट रहोगे तुम खत्म हो जाओगे। But द रीजन वाई रेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कोई भी रिलीजन ले लो, उसमें ज़्यूस वाज अ रेबल, डायनाइसिस वाज अ रेबल, एवरी गॉड हु स्टार्टेड समथिंग न्यू एंड बेटर इज अ रेबल। रेबेलियन से ही सारे अच्छे चीज शुरू होते हैं, रेबेलियन में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी होता है। सो रेबेलियन इज एसेंशियल, बट एंशिएंट सोसाइटीज डिड नॉट अलाउ रेबेलियन। तो एंशिएंट सोसाइटीज में डिप्रेशन का डिस्कशन ही नहीं होता था, क्योंकि देयर वाज नो स्कोप ऑफ डिस्कसिंग दैट। there was already a strict rule written. It began to address कि हमें humanities की जरूरत है to understand how human brain works, how human brain should be treated and all that stuff. The victors tell the story, dude. So if you are telling कि जब भी कुछ better हुआ है तब किसी बंदे ने rebellion करके better किया है, तो that is a very biased outcome, because तुमने victors side of the story ही सुनी है। मतलब तुमको नहीं पता कि And टाइटन्स या उनके पहले वाले so लोगों ने कैसा किया था yeah, गवर्नेंस को। exactly, there is a exactly. very my favorite quote from one of my favorite anime, One Piece, is by a guy named Doflamingo, and he said that whoever wins here, of course, justice will prevail, because whoever wins will say that they are justice. यहाँ पे ये चीज़ आई गेस अपनी सोसाइटी में अभी बहुत आराम से आप लोग को दिख भी रहा होगा, क्योंकि हम जिस जनरेशन में हैं उससे थोड़े जनरेशन्स पहले जिन्होंने हमारे लिए रूल्स और सब कुछ सेटअप किए हैं, हमारे लिए वो सही है। बट अगर उनके टाइम पे जाए तो उनसे जस्ट पहले जिनसे उन्होंने फ़ाइट ली है या जिसके अगेंस्ट जाके उन्होंने किया है, तो कुछ के लिए वो सही थे। तो आई गेस ये फिर हमारा बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है अभी के लिए, इसलिए हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आई थिंक अनुबिस सही बोल रहा था इस जगह पे। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। बट एनीवे हम लोग वापस थोड़ा बाहर की तरफ जा रहे हैं, अदर दैन ब्रेकअप्स, जो कि मैं बोल रहा था कि अगर आप, मतलब जैसे रेवन ने मेंशन किया कि तो इस पे मैं कुछ बोलना चाह रहा था और बीच में भूल गया था, और वापस ब्रेकअप्स पे बात आई तो मुझे याद आया कि आज कंटेम्प्ररी डिप्रेशन तो है ही, लेकिन वैन गॉग, जो कि मतलब लेवकनो ने भी बोला, और वैन गॉग से पहले बहुत सारे लोग, एंड रेंजिंग फ्रॉम वेस्टर्न पेंटर्स जैसे स्क्रीम वगैरह बनाने के लिए, और टू उर्दू राइटर्स इन इंडिया, Ghalib and Mir have written on their beloved, and ये जो सारा रिलेशनशिप में कैसे ब्रेक्स होते हैं, और आज तक लोग उनकी बातें यूज कर रहे हैं। तो यार
क्या कहते हैं इसको, डिप्रेशन से डील करना, या जो कि सोसाइटी बनने के बाद से ही डिप्रेशन से डील कर रहे हैं लोग. एंड व्हेन ह्यूमंस डिड नॉट फॉर्म सोसाइटीज और सोसाइटल नॉर्म्स नहीं थे, तब आई गेस कि डिप्रेशन भी नहीं होगा. लेकिन आफ्टर एडवेंट ऑफ सोसाइटीज हम हमेशा देख रहे हैं कि एक के बाद एक नई सोसाइटी. पहले बुद्धा डिप्रेस थे, फिर ही अटेन एनलाइटनमेंट, और जैसे जैसे हम आगे आते हैं पर शायद फिक्शन से रियल फैक्ट्स की तरफ, तब भी हम ये देखते हैं कि प्रिजर्व्ड पोएट्स और पेंटर्स और मेमोयर्स में है लव एंड सेपरेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ. तो लाइक ऐसा नहीं है कि 800 साल पहले लव नहीं था, और अगर लव था तो डिप्रेशन भी होगा, सैडनेस भी होगी, ग्रीफ भी होगा. तो आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा है कि पहले नहीं होता था और अभी होने लगा है, या इन द लास्ट 100 years यूटिलिटेरियनिज्म और एग्जिस्टेंशियल थ्योरीज के आने के बाद में ही हमको पता चला है कि डिप्रेस हो सकते हैं हम. नहीं, ये इस बात से तो हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि डिप्रेशन पहले नहीं होता था या ये कोई फिनोमेना नहीं था. प्लस लव वाली बात, लव तो यार ये तो एवोल्यूशनरी है. ये तो ऑब्वियसली केवमैन का टाइम से एग्जिस्ट करता है. ये केमिकल चेंज जो है, जो हमारे ब्रेन को एक्साइट करता है किसी दूसरे जेनेटिक मेकअप के लिए, तो ये तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है. प्लस उस पर्टिकुलर पर्सन के लॉस पे अपना जो ग्रीफ है, ये भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता था पहले भी. हमारा पॉइंट ये है कि आज का जो करंट जनरेशन है, जो बहुत शैलो है, जो उस टाइम के मतलब लवर्स जो पोएम्स लिखते थे आर्टिस्ट से, तो उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं इन्हें. तुम अगर ऐसे देखो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा है, तुम फेसबुक पे जाके लिख रहे हो प्यार ने तो हमें ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, तो यार ये तो गलत है ना यार. मतलब तुम प्रॉब्ली फिर वो हो गया ना कि बंदा क्या पता, ठीक है काफी लोग तो शो ऑफ या उस चीज में आते हैं, पर क्या पता कोई जो ना वेंट आउट कर रहा है एक्चुअल में. नहीं, एक्चुअली मतलब हम लोग जब टीन के बारे में बात कर रहे हैं ना, जब टीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, then you have to give them that, you have to allow them stupidity, you have to वो stupid चीजें करेंगे तो you have to be okay with it, and you have to be यार कि हाँ ये तो टीन है, तो मतलब he can do such stuff and you have to be okay with it, and he can still have depression. Basha, you have said correctly, he's allowed to be stupid, but अगर मैं लॉर्ड बायरन को देखूं, जब लॉर्ड बायरन डिप्रेस हुआ था, और वो भी टीनेज में ही लिखा था उसने, जो भी लिखा था कि जब लॉर्ड बायरन डिप्रेस हुआ था तो उसने लिखा था, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज व्हेन ही वाज जस्ट ऑफ आवर एज एंड ऑल. ठीक है, ये पोएट्री उसने लिखी थी, शी वॉक्स इन ब्यूटी, जब वो डिप्रेस हुआ था या व्हेन ही फेल्ट मेलंकली या लोनली. और आज का जो टीनेजर है वो डिप्रेस्ड हो जाता है तो लिखता है ठुकरा के मेरा प्यार, ये वाला कोई because he is reciting lines that he's picked up from somewhere and posting it on Facebook, because that is the trend. You cannot deny the real possibility of that stupidity coexisting with real depression. तो हमारा तो पूरा डिस्कशन है इसी चीज़ पे ना, कि हमें रैशनल थॉट्स के अराउंड ड्वेल करना है, rather than being just a teenager who does what he thinks is cool, right? See, teenager is that stage जहाँ पे आप you are going to be the person you are then eventually will be for the rest of your life. ठीक है, and if the teenager is behaving in a way that will later cause problems to his personality, which I should not say it is a very reductionist view, but still ये इसमें कोई गलती नहीं है कहना कि we should be careful when we are teens कि हम क्या बनने वाले हैं as adults. Maybe right, very true. I would like to pitch in my 2 cents here. I think I मतलब I had no clue, and I don't think मैं जो I don't know, मतलब I cannot say because I cannot judge myself. मतलब जब मैं टीन था तो किसी ने बताया क्यों नहीं? Fuck them. no, nobody told us. That is the thing. Everybody. We could have jumped on the opportunity. Yes, मतलब हम सब ये अग्री कर सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सब ऐसे ही स्टम्बल हो के फाइनली we figured out कि okay, there is something wrong with us, and maybe that is why we are having this discussion in the first place. That is the amazing part about this. मैं आई गेस जिन्होंने भी अपने टीनेज में ब्रेकअप देखा होगा, सबका आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन यही रहा होगा कि मैं एक सैड गाना सुनूंगा और फेसबुक पे जाके ऐसा वैसा लिखूंगा विदाउट यूजिंग हर नेम. मैं ऐसे लिखूंगा कि वो पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और लोग मुझे मैसेज करके पूछे भाई क्या हो गया.
भाई सब ठीक तो है ना, कितने बार राइट? कितने एग्जैक्टली, Because मतलब आई that was थिंक the हाँ that was the I normal back then. एग्जैक्टली, वो डिफैक्टो था I उस टाइम का। तो अब अगर हाँ sometimes कि अब sometimes I yearn to be that stupid. वो तो होता ही है, वो नॉस्टैल्जिया का वेव आता ही है I कभी कभी। wish I wish I was that stupid or I could be that stupid. मतलब मेरे को लगता Beautifully है put, हाँ, beautifully put. वही it पॉइंट has आ जाता है कि different वी कैन गेट अवे विद स्टफ एट दैट एज, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ये है। अब हर कोई सीरियस लेता है हर चीज को, मतलब जो I करो। think मतलब I think that's a cry for validation जो कि उसको उस बंदी से या उस जो भी उसका पार्टनर था उससे नहीं मिला. So I think he's seeking that from somewhere हाँ, else. ही इज लुकिंग हाँ, फॉर वो अटेंशन फेस टू ऑन फेस सोशल डिपेंड करता है। मीडिया। अपन ऑन द सरफेस नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है। हम्म, मे बी ही इज राइटिंग द सेम थिंग्स, बट उसको अगेन एंड पता नहीं अगेन। कि मैं क्या लिखूं, मेरे को टाइम नहीं, बस पता तो पड़ किसी को कि मैं दर्द में हूँ, बस उसको नहीं पता कि क्या लिखूं, तो वो छाप रहा है एक जगह से। speaking But of depression, it is clearly a big deal to him, and speaking I think the reason that these things are a bigger deal to younger generations today is compared to old times is because of this, that the highs are high because of the low, and similarly the lows are low because of the highs. So in current times there are much more ways than previous times to stay on a constant high, and so even a certain low might feel lower than it would have been राइट। some time ago. So nor even if you are on a like a constant high, like one good thing after another is happening, then you get used to that high, and a small like like थोड़ा सा कुछ गलत हो गया and it's like everything comes crashing down, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, because you are not used to that low again. That could be something, that could be the reason why these things are such a big deal to younger generations. अभी जैसे अपने मतलब इंजीनियर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में हैं, फाइन आर्ट्स में हैं, आर्ट्स में हैं, तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, ठीक है, इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा। अब अगर हम एक जनरेशन पीछे जाके अपने पेरेंट्स का लाइफ ऑब्जर्व करें, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे लाइफ से उनका लाइफ अगर मैं कंपेयर करूँ तो उनका लाइफ वॉज वे मोर टफ, ठीक है। of course it was, और एक जनरेशन पीछे जाएगा, जितना पीछे जाएगा और भी ज्यादा हाँ, टफ मतलब होता जाएगा, अब हमारे आगे आसान होगा। अब 3-4 जनरेशन पीछे चले जाओ तो दे हैड टू क्रॉस कंट्रीज टू फाइंड जॉब्स एंड टू लिव, और हम यहाँ पे having food was a luxury. तीन Like जनरेशन having पहले तो गोलियां खा रहे थे। see? अब हम यहाँ पे हैं, जो भाई ऑफिस अगर 10 किलोमीटर दूर हो गया, अरे भाई 10 किलोमीटर दूर, और Saturday work भी कर दिया यार. हाँ, कॉलेज बुला लिया एक दिन ज़्यादा तो भाई कॉलेज बुला लिया यार सैटरडे को, भाई क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब 4 फीट दूर रूम में जाना पड़ेगा बुलाने के लिए गेम के लिए। ब्यूटीफुली पुट। तो अब मतलब वही है, हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो प्रिविलेजेस हमको मिलते जा रहे हैं, दैट इज़ मतलब ये गलत वर्ड होगा ऑफ कोर्स, बट मेकिंग अ सॉफ्टवेयर, और हम उतने ही ब्रिटल, perspective which की is बात what है. I was trying to say when I said कि जो modern brain में जो depression है, that is kind of stupid. मतलब तुम्हारे needs की वजह से depression नहीं है, तुम्हारे wants की वजह से depression है, right? It is right. what you are saying, that is on the same lines, right? right, exactly. अभी but there is a subtle difference, ये कि जैसे ये मॉडर्न और एंशिएंट ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा एवोल्यूशनरीली हम बोलते हैं, ये सब में हर स्टेज में होता है ये, बट जो आप अलग से बोलना चाह रहे हैं अबाउट स्पेसिफिसिटी ऑफ डिप्रेशन, वो हायरार्की पे डिपेंड करता है हमारे प्रेफरेंस का। जैसे अगर खाना नहीं मिल रहा तो खाने का रंग और टेस्ट मैटर नहीं करेगा, उस समय केवल खाना मैटर करेगा। तो दैट इज नॉट हाउ दैट हैज नॉट एनीथिंग टू डू विथ द एक्चुअल मतलब ब्रेन का जो लेआउट है उससे, इट हैज मोर टू डू विथ कि हमारा अभी कंडीशन क्या है। कंडीशन अभी भूख का है तो हम मे बी अपना वो कम कर देंगे, थोड़ा नखरे कम कर देंगे, ऐसा वाला चीज। यार मेरा क्वेश्चन तो ये है कि हम प्रिमिटिव जो लॉ है नेचर का कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज फाइटिंग टू लिव, हम ये कैसे ब्रेक करते हैं? हाउ डू वी डू दैट? मतलब हर ऑर्गेनिज्म यही ट्राई कर रहा है ना कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लिव नो मैटर व्हाट, चाहे वो दूसरा ऑर्गेनिज्म को मार के क्यों ना हो, राइट?
और एक Yes. जनरेशन आगे जाना है। इतना 2 बेसिक काम होता है हर ऑर्गेनिज्म का। ये हार्ड वायर्ड है, इसी से तुम्हारा लव डिराइव्ड है, इसी से तुम्हारा हेट डिराइव्ड है, सब कुछ इसी से आता है। एग्रीड, राइट? नहीं, Yeah, अगर 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 हम ऐसे बोलें कि स्पेसिफिक इंटरेक्शन स्पीशीज का स्पेसिफिक इंटरेक्शन से ही लव और हेट डिराइव होता है, तो दैट वुड बी काइंड ऑफ रॉन्ग। नहीं यार, क्योंकि मतलब तुझे अगर सरवाइव करना है एज एन ऑर्गेनिज्म, लव का फिनोमेना आता कहाँ से? लव का फिनोमेना तो यही चीज़ है ना कि दो दो जेनेटिक मेकअप एक दूसरे को फेवरेबल समझते हैं, तो लव का जो फिनोमेना है तब आता है। दैट इज़ नॉट समथिंग जो मैजिकली आता है, भगवान ने दे दिया। दैट इज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज़ टोटली अ केमिकल चेंज जो एवोल्यूशन ने हमें दिया है, ताकि हम अगर अपने Just genes being compatible. एग्जैक्टली ओके, दैट इज ट्रू, अब वो तो सही है। यहाँ पे अगर हेट जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मान ले क्लास में तू गया और किसी के लिए तेरे को स्पेसिफिकली हेट आ रही है बिकॉज ही इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर देन यू, ठीक है? तो यहाँ पे तेरा अल्फा मेल किक इन कर रहा है, राइट? अल्फा मेल क्यों किक इन कर रहा है? बिकॉज तेरे मतलब जेनेटिक मेकअप नहीं बोलना चाहिए, एवोल्यूशन ने तेरे को ऐसे ट्रेन किया है कि द बेस्ट शैल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो तू ऑटोमेटिकली इस चीज़ के लिए ड्रिवन होता है कि आई नीड टू मेक श्योर कि मेरा सर्वाइवल खतरे में ना आए। अब तू इसको मॉडर्न सोसाइटी में हेट बोलेगा, एनवी बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा, बट प्रिमिटिवली तो ये बस यही है कि तेरे को अपना अल्फा जोन, अपना एज एन अल्फा तुझे अपना रीजन या क्या बोलते हैं उसको यार, टेरिटरी बचा के रखना है। यही चीज़ लव के लिए, यू आर फाइटिंग टू गेट अ बेटर मेट सो दैट द ऑफ स्प्रिंग इज़ बेटर। एकदम मतलब बॉयल डाउन कर सकते हैं हम लोग सारे फीलिंग्स को। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मतलब मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है या सुना है, मतलब तुम किसी भी फीलिंग की बात करो, ठीक है, सब कुछ बॉयल डाउन होके एक चीज़ पे आती है कि तुम्हारा सर्वाइवल, जो एवोल्यूशन ने हमें ट्रेन किया है जिस चीज़ के लिए। अब उसे हम घुमा फिरा के डिप्रेशन बोले, चाहे लोनलीनेस बोले, चाहे लव बोलें, चाहे हेट बोलें, राइट? तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हाउ डज ह्यूमन बीइंग विच इज़ सपोज टू बी द पिनेकल ऑफ इंटेलिजेंस, हाउ डज इट गो बैकवर्ड्स कि भाई मुझे मरना है? Intelligence has nothing to do with your will to survive. नहीं यार, That is इंटेलिजेंस In fact, I want to make a counterpoint. I mean, मतलब I want to say कि मतलब I think depressed होने के लिए your brain has to have a certain complexity. मतलब a certain level of intelligence is required to be I depressed. could never agree more with this. I could never agree more with this. I mean, it's Yes. like I was about depression to is bring like this up PUBG. at some point. Depression is like PUBG. कुछ लोगों के पास वो मोबाइल्स ही नहीं होते जिसमें PUBG खेला जा सकता है, राइट? You need that hardware really. बहुत ही रिवोल्टिंग Yes. से Best statements analogy. लग रहे हैं मुझे ये। Ignorance is bliss. Ignorance is bliss. राइट, बहुत ही रिवोल्टिंग ये से अच्छा पॉइंट है statements लग रहे हैं मुझे। So I mean, और yeah, this is nothing new. मतलब people have been sort of this point has been raised time and again by many people, right? That not exactly the same way, but then people say कि people with higher intelligence are often sad, right? This ये is how हाँ, people ये put मैंने it. सुना है काफी कि people Yes, the with tortured artist का archetype बना ही इस basis पे है कि he can think of more problems जो उसके अंदर है, तो वो depressed हो रहा है। क्योंकि बेवकूफ आदमी नहीं सोच सकता कि मेरे अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं। ये एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट है इसके फेवर में, इस चीज के फेवर में। आई एम नॉट सेइंग दिस माइट बी द ट्रूथ, आई माइट बी रॉन्ग, बट ये कहते हैं कि टू नो योर फ्लॉज यू मस्ट बी अ बिट इंटेलिजेंट टू नो कि हाँ मैं यहाँ गड़बड़ हो सकता हूँ, मैं यहाँ गड़बड़ हो सकता हूँ। So I guess Confidence- ये एक fair point है, I think. Yes, confidence and stupidity have been going hand in hand since the time of yore. तो इस हिसाब से देखा जाए तो a person who is less likely to be rational would go along with his primal instincts of survival, whereas someone who has a very rational brain and just for some unfortunate reason ends up in a situation where things have not gone his way, तो उस केस में he will question his own existence, right? Yes, existential misery is one of the reasons for depression. और before anybody gets triggered, मैं ये भी बता देता हूँ कि हमने जो भी बोला about intelligence and depression, ये बस एक व्यू पॉइंट रखा है. It is not the objective truth. So please, if anybody feels offended, please don't. Everybody has the right to be depressed. And everyone Take everything we say with a grain of salt.
no one will feel offended, right? I mean, हाँ so basically, ये if ओपिनियन है. someone we depressed, are what basically saying that if you're depressed, you are very you are intelligent. intelligent. ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, Yes. ये मैं audience, जो हमारी वुड बी ऑडियंस हमें हमें देख रही है, मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ कि if Exactly. So no one will be offended. I mean, I because one everybody, everybody who's stupid thinks they're intelligent, so they will not take offense. that is Anyone true. who's That is true. and anyone who's depressed, we are essentially saying that he's intelligent. So certainly he would not be offended. Obviously, So, this is a win-win. Don't you think this is a win-win? yeah, this is a win-win, right? I mean, of course. There And are one more and type of people, the if, white if knights and SJWs. They will be offended. Oh, and please don't speak of snowflakes. And if a stupid person, if a stupid person who thinks he's depressed, if he ये is listening to this, हाँ. then he will be fucking happy. I mean, he would go, उसका depression चले जाएगा. वेल We प्लेड, are the वेल same. प्लेड। तो बहुत सारी चीजें अभी मतलब हो गई है थोड़े टाइम में। एक तो ये कि आजकल के जो टीन्स हैं वो इफ सम टीन इज नॉट लॉर्ड बायरन और if some teen is not Ghalib or if some teen is not Shelley, then I don't think that his depression is any less than theirs. Because I can't paint $2 million paintings doesn't mean I can't have depression, right? So it is, he is Van Gogh or he is Ghalib because his paintings have endured or his couplets have endured for centuries, and that is why his depression may be more unique or maybe he put it in a better way। लेकिन बाकी भी आज जो recently ये discuss कर रहे थे कि we need to be having a certain level of intelligence for us to get depressed। तो ये वाला पॉइंट भी और इससे पहले भी जैसे लव, ये केमिकल रिएक्शन है, ये बाकी सारी चीजें भी। तो अरे मतलब if love is chemical then perhaps it is also philosophical or psychological, because there is not only the need of the body but there is a need of the mind। और अगर तुमको correct mental stimulation मिलता है तो then also love can happen। तो ये तो love is not only a physical relationship या फिर क्या कहते हैं fulfillment of physical desires, या फिर मतलब तुम्हारे फिजिकल केमिकल लोचा या तुमको तुम्हारा ब्रेन उल्लू बना रहा है केमिकल्स सिक्रीट करके, ऐसा नहीं है। देयर कैन बी सम फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल कनेक्ट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। मेरी इंसाइट ये है कि ब्लैक नो काफी क्लिनिकल डिप्रेशन को अपने दिमाग में रख के भी बात कर रहा है, और मेरा दिमाग में रखा हुआ जो भी मतलब मेरा दिमाग में एक इमेज बनी हुई है नैरेटिव डिप्रेशन का, वो काफी ज्यादा ये है कि साइकोलॉजिकल शिट है ये। और मैं ज्यादातर आंसर्स अपने दे भी उसी को ध्यान में रख के रहा हूँ और सोच भी यही रहा हूँ कि दिस इज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसका साइकोलॉजी और फिलोसफी में आंसर मिल सकता है और मिलेगा। मतलब जो ये क्लिनिकल डिप्रेशन का ये सब मेडिसिन वगैरह से ट्रीटमेंट है उसके ऊपर ज्यादा उपाय मैं कर नहीं सकता और मतलब कर भी नहीं रहा हूँ आई गेस। Psychology, yes. Philosophy, I don't know. But then yes, मतलब हाँ, medicines is also, the idea of medicines is also something that I'm averse to. मतलब if God forbid मतलब अगर मेरे को हो जाए depression, right? I would never sort of go take medicines. Meds are a fucking no to me. The But funny then yeah, thing is Like मेरा भी ऐसा it's ही not stance much of a choice at some point. I think if there is a rope you can give someone, you should give it to him because you cannot treat a dead person. नहीं Raven, actually I understand where it is coming from Barshaga, because being from med background I also am a bit reluctant। मतलब मेरे को भी जब प्रॉब्लम होता है मैं साइक के पास जाने मतलब बहुत बार सोचूंगा, अभी तक गया भी नहीं हूँ ट्रस्ट मी। भले that is the ultimate option but I don't go I would because prefer a therapist who has a fucking diploma and who cannot prescribe medicines. yes, I would visit a therapist, say, a beautiful therapist, a chick that I can chat to with, for some time, and who really has no shit, who has no idea, how to cure my depression. But then I would prefer visiting, giving it a shot for say, a couple of times or 4-5 times before actually taking the decision ki yaar, no, I have to visit a shrink and that is there's no other. that is do you know S do you to know the who I was to the the M to the P।
एक चीज है जो अभी प्रूवन है टू वर्क, व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट? नहीं, that has not, It's वही तो not मैं कह रहा हूँ, proven. it is not It's proven. not proven. Matlab, the only thing that is proven is if you visit a shrink and you are prescribed medicines, right? You will get hooked to the fucking medicines, and that will become another problem. नहीं, And वो all these एंटी medicines, एंटी all डिप्रेसेंट these आपको इसीलिए दिए जाते हैं ना कि आप उस जोन में ना चले जाओ वापस। एंटी all these डिप्रेसेंट्स। medicines have very severe side effects. I know friends who are taking these medicines. A couple of my friends are taking these medicines, and both, right? They are steroids essentially. I mean, you get fat. Yes, Your body I changes like agree. I agree. I agree to the point that you're saying. I completely get it. But see it from the shrink's point of view. You might not have a customer the next time. You might the next time you come. So to find the underlying issue, what's the harm in prolonging it? Like हाँ वही, you can hook them off. You hook them off through rehabilitation and other things, but you will get more time to diagnose the underlying issue with this. no, it's not. It's about. So if someone has read Nicholas Taleb, right? He speaks about interventionalism, right? When someone comes to you with a problem. So interestingly, he did this experiment with tonsillitis. As far as I can remember. So 400 children were selected who had tonsillitis, and ideally, let's say I don't remember the exact numbers. So ideally, 30% of them should have been operated, and rest should not have been operated. So what they do is they consult a doctor, and the they send these group of people to doctors, and the doctors sort of they suggest operations for some, and they don't suggest operations for some other people, and the ratio is fairly, you can see that ratio. Okay, 30% people are suggested to get themselves operated, and 70% are suggested to not to get themselves operated. Then from the 70%, he picks those 70% and sends them again to doctors, and from that 70% again 30% are suggested to go get themselves operated, and the rest sort of 30% are suggested to go get themselves operated, and 70% are let go, right? Then from that group which are let go, he again sends them to another set of doctors, and then in that set again, he sees the same thing, right? So when 10 patients visit a doctor, the doctor feels that in his the statistics in his brain work in a way that in his brain he has to intervene in 7 of the 10, right? That is something that is sorry, in 3 of the 10, right? He has to intervene. And so basically, you don't sort of objectively view the situation, and that is it is impossible to objectively sort of set a score, set a number against your depression or your condition, and sort of treat you accordingly, right? uh, yeah, and so, matlab, meds prescribe karna, right? It is a very easy way out, right? Take these happy pills and it'll get better, right? So it is a very easy way out, uh, and doctors might sort of just prescribe it right away. मतलब उसके पास जितने सारे लोग जा रहे हैं, स्टेटिस्टिकली ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे लोग, किसी को नहीं चाहिए मेड्स, लेकिन अगर 100 लोग जाएंगे तो वो 100 में से 50 को तो दे ही देगा, क्योंकि दैट इज व्हाट ही इज बीन डूइंग. Yes, the that is a very domino fair effect, point. I guess. Everyone might not need them based on the degree of the depression they have. It is like Exactly. prescribing antibiotics to every single disease they have. यस, मतलब एवरीवन माइट नॉट नीड, राइट? बट उस डॉक्टर के पास एक Yes. काउंट रहता है उसके दिमाग में, उसके पास एक स्टेटिस्टिक्स चलती रहती है उसके दिमाग में कि 10 बंदे आ गए. ऐसा नहीं करेगा वो, 10 बंदे में से उसको 2-3 बंदों को तो वो देगा ही. मतलब तो अगर एक दिन में लकीली ऐसा हो रहा है कि एक दिन का जो पूरा सैंपल सेट है, वो 10 के 10 बंदे एक्चुअली उनको नहीं मिलनी चाहिए थी मेडिसिन, लेट्स से, बट देन वो एक दिन में 2-3 बंदों को तो देगा ही. उसका दिमाग में ऐसे स्टेटिस्टिक्स है, मतलब वो एक दूसरे उन 10 बंदों के सेट को आपस में ही कंपेयर करेगा, और उन 10 बंदों के सेट में जो 3 वर्स हैं, राइट, उनको वो प्रिस्क्राइब कर देगा, राइट? बट देन एब्सोल्यूट स्केल पे वो नहीं होंगे उतने वर्स. ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस हो गया ना, It's मतलब not unethical. They don't know. It's not unethical. There are, मतलब objectivity नहीं है process में, right? You cannot associate a number. You cannot put a number against a person's severity of depression. That thing has not been sort of established yet, right?
तो मतलब वो तुम relative क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो ना, quantify नहीं क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो डिप्रेशन को। नहीं, बट इस पे प्रॉपर स्टडी होती है ना, केसेस। कोई डॉक्टर या कोई साइकेट्रिस्ट जब फील्ड में उतर रहा है, उससे पहले उसे बहुत सारे केसेस दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि दिस इज़ सिवियर, दिस इज़ नॉट। तो मतलब कहीं ना कहीं तो उसने एक सिवियर केस देख ही रखा होगा जिससे वो अपना स्केल सेट करता है। ओह, सीम्स लाइक वी आर आउट ऑफ टाइम राइट नाउ। सो ऐसा करते हैं कि आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, एंड विल पिक इट अप ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। सो फॉर द ऑडियंस जिन्होंने अभी तक हमारा डिस्कशन सुना, thank you guys for listening, and we have a special surprise for you. As Project Heuristics is all about art and artists, we reached out to Abhishek Lamba, one of our in-house talents, for his beautiful and masterful work. We'll add the link to his channel. Go check it out. And yeah, I guess it's time for us to say goodbye. We'll see you guys in the next video. Enjoy the music.